Hello students. So today's video is on enthalpy of physical transformation. So what is enthalpy of physical transformation? So when any substance gets physically transformed, means उसका जब phase change होता है solid से liquid, liquid से gas, तो वहां पे enthalpy में change आता है and वो change को एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है. सो 4 एंथैल्पी चेंज अकर. सो फर्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज और फेज ट्रांजिशन. Physical transformation enthalpies are of 4 types. First is enthalpy of phase transition. Next is breaking of individual atoms, molecules into their ions. Is also a physical transformation. When any atoms get converted to ion or any molecule get converted to atom or ion is also considered as physical transformation. Third is dissolution. Dissolution of a substance into a solvent. Dissolution of solute substance into a solvent. इसका मतलब ही solution formation is also coming under physical transformation. Next is dilution of solution. Dilution of solution is also a kind of physical ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस आर द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये सब होने के टाइम पे, ये प्रोसेसेस होने के टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज आता है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, फेज ट्रांजिशन. So what is enthalpy of phase transition? In phase transition, one phase of substance is converted to another at constant temperature and pressure. So for example, solid getting converted to liquid or liquid getting converted to solid or liquid getting converted to gas or gas getting converted to liquid. So solid to liquid is known as fusion. Liquid to solid is known as freezing. Liquid to gas is known as evaporation. And gas to liquid is known as कंडेंसेशन. सो ये सब प्रोसेस होते हैं तभी क्या होता है, फेज ट्रांजिशन होता है. एंड ड्यूरिंग दिस फेज ट्रांजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? एंथैल्पी चेंज during the transition at constant temperature and pressure is called enthalpy of phase transition.
सो इसके अंडर फर्स्ट जो एंथैल्पी हम लोग करेंगे दैट इज फॉर फ्यूजन. सो फर्स्ट टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन यानी क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड. एंड इसको डिनोट कैसे किया जाता है? डेल्टा FUSH. So let us consider water molecule in solid state and it is getting convert to water liquid. There is 1 mole of solid H2O is getting convert to liquid state H2O. And ये जो process है solid getting convert to liquid is known as fusion. ओके, सो यहाँ पे जब भी 1 मोल ऑफ H2O सॉलिड विल गेट कन्वर्ट टू 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड at 0 degree Celsius, constant temperature and pressure at 0 degree Celsius and 1 atmosphere pressure. तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा मीन्स जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन रहेगा दैट विल बी 6.01 किलो जूल पर मोल. So, I repeat, when 1 mole of ice melts at 0 degree Celsius and 1 atmosphere pressure, the change in enthalpy is plus 6.01 kilojoule. इसका मतलब है आइस जो है वो 1 मोल ऑफ आइस जो है वो 6.01 किलो जूल ऑफ एंथैल्पी एब्जॉर्ब कर रहा है. एंड वो एब्जॉर्प्शन, वो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं? इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट. सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. The enthalpy change that accompanies the fusion of 1 mole of a solid without change in temperature and pressure is called enthalpy of fusion. So, temperature change होगा तो enthalpy of fusion भी चेंज होगा. ये जो 6.01 है दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन विल ऑल्सो इंक्रीज. नाउ व्हाट इफ लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्ट टू सॉलिड? सो अभी मैंने क्या किया है? 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड लिया एंड नाउ इसका फेज चेंज हो रहा है इनटू सॉलिड स्टेट. मीन्स फ्यूजन का रिवर्स इज फ्रीजिंग. यहाँ पे क्या हुआ? फ्रीजिंग हुआ. सो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट विल बी दी एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. हम लोग ने टेम्परेचर सेम रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही. 1 मोल ऑफ वाटर इज गेटिंग कन्वर्ट टू 1 मोल ऑफ आइस. सो यहाँ पे फ्रीजिंग होगा. सो फ्रीजिंग होगा तो एंथैल्पी भी क्या आएगा? फ्रीजिंग एंथैल्पी आएगा. And it will become minus 6.01 किलोजूल पर मोल. यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया प्रोसेस, तो एंथैल्पी भी क्या हो गया? उल्टा हो गया, साइन में चेंज आ गया. बाकी वैल्यू क्या रहता है? सेम ही रहता है. सो this reaction H2O liquid getting convert to H2O solid is freezing reaction and enthalpy change जो आता है that is enthalpy of freezing. Reverse of fusion is freezing. So magnitude of enthalpy is remaining same but सिर्फ sign क्या हो रहा है? opposite हो जाता है. So I repeat, यहाँ पे क्या हो रहा है? When 1 mole of liquid water freezes at 0 degree Celsius at 1 atmosphere pressure, enthalpy change is
minus 6.01 kilojoule per mole means 6 जब भी 1 mole of water liquid gets convert to water solid तो 6.01 किलोजूल एनर्जी क्या होता है, लिबरेट होता है. बट जब भी उल्टा होता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, तो वो 6.01 किलोजूल एंथैल्पी वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है. सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. The enthalpy change that accompanies the freezing of 1 mole of liquid without change in temperature and pressure is called enthalpy of freezing. Next is enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization, and it is denoted as delta VAPH. So what is vaporization? Liquid getting converted to gas is vaporization. So now here I am taking water liquid and it is getting converted to water gas. 1 mole of liquid is getting converted to 1 mole of gas और टेम्परेचर हम लोग ने कितना रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस रखा है. सो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको बोलेंगे हम लोग वेपराइजेशन एंथैल्पी. एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 40.7 किलो जूल हीट इज एब्सॉर्ब्ड. सिमिलरली अभी हम लोग ने क्या किया, सेम रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं बट एट डिफरेंट टेम्परेचर. सो मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वेपराइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. जितना टेम्परेचर कम उतना एंथैल्पी रिक्वायरमेंट मोर. ओके, सो लिक्विड से गैस जाने के लिए एंथैल्पी इज पॉजिटिव, हीट इज एब्सॉर्ब्ड. लिक्विड क्या करेगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा एंड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है उसके वो ब्रेक करेगा, जिसके वजह से इट विल गेट कन्वर्ट टू गैसियस स्टेट. व्हेन टेम्परेचर चेंजेस और प्रेशर चेंजेस, एंथैल्पी ऑल्सो चेंजेस. Less will be the temperature, more will be the enthalpy, or more will be heat absorbed. I repeat, when 1 mole of liquid water is vaporized at 1 atmosphere pressure and 100 degree Celsius, heat absorb is 40.7 kilojoule, and at 25 degree Celsius, heat absorb is 44 किलोजूल. सो इससे क्या पता चलता है, व्हेन टेम्परेचर, बार बार बोल रही हूं मैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके, सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. The enthalpy change that accompanies the vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure is called enthalpy of vaporization. Now, vaporization का reverse of vaporization is what? Is condensation. So let us take 1 mole of water gas getting convert to water liquid at 100 degree Celsius. So enthalpy of condensation will be minus 40.7 kilojoule per mole.
यहाँ पे क्या होगा, एक when 1 mole of gas will get convert to 1 mole of liquid at 100 degree Celsius, 40.7 किलो जूल हीट क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा. सो वेपराइजेशन में हीट एब्जॉर्ब हुआ था, कंडेंसेशन में हीट इवॉल्व होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ हीट विल रिमेन same. Similarly, 1 mole of water gas is getting converted to liquid at 25 degrees Celsius. So, heat of condensation will be minus 44 kilojoule per mole. So, this reaction is condensation reaction, and this enthalpy is enthalpy of condensation. When 1 mole of liquid water condense at 1 atmosphere pressure and 100 degrees Celsius, heat absorbed is minus 40.7 kilojoule, and at 25 degrees Celsius, heat absorbed is minus 44 kilojoule. So what will be the definition? The enthalpy change that accompanies the condensation of 1 mole of gas without changing its temperature at constant pressure is called as enthalpy of condensation. Now, next is enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. So, it is denoted by delta SUBH. So what is sublimation? Conversion of solid directly into gas is sublimation. And sublimation होने के टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ sublimation. So water, solid, ice is getting converted to vapor, that is gas, and यहाँ पे जो enthalpy of sublimation है that is 51.08 kilojoule per mole, and temperature जो है that is at 0 degree Celsius. So water जो है वो solid से directly gas में नहीं जाता है, उसको liquid phase से होके ही जाना पड़ता है. So that's why this conversion of water solid to gas takes place in 2 steps. So first step is water solid getting converted to water liquid, and then second step में आएगा water liquid is getting converted to water gas. So यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड एट ये जो सब हो रहा है दैट बोथ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज फ्यूजन एंथैल्पी, दैट इज इक्वल टू 6.01, एंड नेक्स्ट वाला जो है दैट इज वेपराइजेशन एंथैल्पी एंड दैट इज 45.07. अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो टोटल विल बी हाउ मच 51.08 किलोजूल पर मोल. सो हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ vaporization. So sublimation enthalpy is a sum of fusion enthalpy and vaporization enthalpy. So let's see its definition. The enthalpy change that accompanies the conversion of 1 mole of solid directly into its vapor at constant temperature and pressure is called
enthalpy of sublimation. So with this, enthalpy of phase transition is completed. So we have covered here all transitions: fusion, freezing, condensation, vaporization and sublimation. ये 5 टाइप के phase transitions होते हैं. This we have already covered now. Now move on to enthalpy of atomic or molecular changes. So enthalpy of atomic or molecular changes. So first इसके अंडर वाला enthalpy है enthalpy of ionization. Enthalpy of ionization is denoted as okay. So what is ionization? Ionization में क्या होता है? एटम्स जो है वो आयंस में कन्वर्ट होता है. सो आयंस में कन्वर्ट होने के लिए आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है या फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. वी हैव सोडियम. सोडियम इज 281. इट हैज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करता है? स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देता है एंड इट बिकम Na प्लस. सो इट इज नाउ स्टेबल 2,8. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो चेंज आता है एंथैल्पी में, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड दैट इज 494 किलोजूल पर मोल. सो टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, और ये जो सोडियम रहेगा वो कैसा रहेगा? गैसियस स्टेट में रहेगा. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिमूव्ड एंड एडेड इन गैसियस स्टेट ओनली. So to remove one electron from 1 mole of gaseous sodium, heat required or absorbed is 494 kilojoule per mole, and that is enthalpy of ionization. Let's take one more example. हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं. कैल्शियम. So calcium has 2 electron in its outermost orbit. Now calcium in gaseous state, 2 electrons उसके पास एक्स्ट्रा है. तो वो क्या करता है? वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है टू गेन स्टेबिलिटी. बट दोनों एक साथ नहीं देता है, स्टेप वाइज देता है. सो पहले एक इलेक्ट्रॉन दे देगा एंड इट विल बिकम Ca+1. सो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी लगता है, दैट इज हाउ मच? 590 किलोजूल पर मोल. अब वही +1 में से ये Ca+1 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा एंड इट विल बिकम Ca2+. नाउ इट हैज गेन स्टेबिलिटी. सो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा that will be 1150 kilojoule per mole. Now we have already discussed कि ionization enthalpy 2 is always greater than 1. This we have already discussed in modern periodic table in 11th standard. So होता क्या है, जब भी यहाँ से फर्स्ट स्टेप में जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो कैल्शियम जो है इट इज इन न्यूट्रल स्टेट. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंपेरेटिवली लेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बट नाउ यहाँ पे ये +1 हो गया, मीन्स एक प्रोटॉन जो है that has become more as compared to electron. So attraction between nucleus, between proton and electron has increased. So comparatively जो एनर्जी लगता है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, that is more. Now reverse of ionization enthalpy is electron gain enthalpy. Reverse of ionization enthalpy is electron gain
enthalpy or process. Reverse of ionization process is electron gain process. Okay, so chlorine है. Now chlorine is 287. नाउ इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है. सो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है एंड इट बिकम Cl माइनस. सो नाउ इट इज 288. सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी लिबरेट हुआ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जो वाला पार्ट है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो ये मैंने जस्ट तुम लोग को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. And it is denoted by delta ATOH. Now, what is atomization? Process in which molecules get converted to atom is atomization. जैसे you have chlorine Cl2, it is a molecule. Now, Cl के अंदर कैसा है? This Cl will have 7 electrons. There is one more chlorine and it will also have 7 electron. and यहाँ पे क्या है? बॉन्ड है. अब ये जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? एटम स्टेट में आ जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो कम इन एटम स्टेट एंड इसको बोलते हैं एटमाइजेशन. सो Cl2 will get convert to chlorine and this everything will occur in गैस फेज. एंड यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा या फिर एटमाइजेशन एंथैल्पी जो रहेगा Cl2 मॉलिक्यूल का, दैट इज 242 किलोजूल पर मोल. ओके, सो इन शॉर्ट Cl एंड Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज दिस 342. Okay, now this ये हो गया एक एग्जाम्पल. दिस वॉज वेरी सिंपल. नाउ वी टेक वन मोर मॉलिक्यूल. जैसे हम लोग मीथेन ले लेते हैं CH4. नाउ CH4 मीन्स देर आर 4 बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन. सो अभी यहाँ पे क्या होगा? नाउ दिस इज इन गैस फेज. नाउ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स is known as atomization enthalpy. जब ये bonds break हो जाएंगे तो carbon will get convert to its atom state and hydrogen will also get convert to its atom state and that is known as, यहाँ पे जो enthalpy change आएगा that is enthalpy of atomization. Now let's see its definition. Enthalpy change accompanying the dissociation of all the molecules in a 1 mole of gas substance into its gaseous atom is called enthalpy of atomization. So here there is 1 mole. दोनों भी एग्जाम्पल में हम लोग ने 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल लिया है एंड वो मॉलिक्यूल को हम लोग उसके रिस्पेक्टिव एटम्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं. मीन्स वो बॉन्ड्स को एटम्स में कन्वर्ट कैसे होगा? बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. एंड वो बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. नाउ next is enthalpy of solution. Next is enthalpy of solution. So when
solute is dissolved in a solvent, solution gets formed. And during formation of solution, जो heat transfer होता है, that heat transfer is known as enthalpy of solution. Heat transfer takes place when a solute is dissolved in a solvent, and this heat transfer is called enthalpy of solution. So in short हम लोग बोल सकते हैं कि solution जब भी बनता है तभी जो कुछ भी enthalpy में change आता है उसको बोलते हैं हम लोग enthalpy of solution. तो ये changes कैसे आते हैं वो भी हम लोग आगे study करेंगे. So first let's study some examples. So example है, मैंने एक solute लिया है NaCl and now I am putting it in solvent water. तो अपने को क्या मिलेगा? NaCl in solution, that is in aqueous state. So यहाँ पे जो एंथैल्पी आएगा, ये जो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है वो उसको डिनोट करते हैं SOLNH, that is एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन. और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आता है फॉर NaCl, that is 4 किलो जूल पर मोल. 1 मोल ऑफ NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के लिए 4 किलो जूल एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ता है. सिमिलरली KCl इन वाटर, सो KCl वाटर में जाएगा तो एक्वियस स्टेट में आ जाएगा, एंड जो सोल्यूशन बनने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आता है KCl के लिए, दैट इज 17.2 किलो जूल पर मोल. सो KCl को 1 मोल ऑफ KCl को वाटर में डिसॉल्व होने के लिए 17.2 किलो जूल एनर्जी क्या करना पड़ता है? एब्सॉर्ब करना पड़ता है. सो लेट्स चेक आउट the definition. Enthalpy of solution is defined as enthalpy change in a process in which 1 mole of substance is dissolved in specified quantity of solvent so as to form solution of particular concentration at a given temperature. Now, solution formation takes place in following steps. So first step है solute interaction. So actually ये सब हम लोग ने already study कर लिया है, just a short, इसको हम लोग दूसरे aspects के साथ study कर रहे हैं. So what is solute interaction? In solute interaction, intra-bonds or inner bonds breaking of solute molecule is done. क्या inner और intra bonds जो है वो क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं. For example, if we have NaCl, तो NaCl जैसे ही वाटर में जाता है, it gets convert to Na plus and Cl minus. इसी का मतलब है NaCl जो है it is having a cubic shape structure, and जैसे ही वाटर में जाता है वो जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है एंड Na plus and Cl minus क्या हो जाता है? अलग हो जाता है. So NaCl which is in atomic form gets convert to its ion, and यहाँ पे एटम से आयन्स में कन्वर्ट होना, इसी का मतलब है लैटिस ब्रेक होना. उसका लैटिस कौन सा है? वी हैव स्टडीड इन सॉलिड स्टेट. NaCl इज हैविंग विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? क्यूबिक स्ट्रक्चर. FCC अरेंजमेंट करता है, वो उसका लैटिस है. एंड जैसे ही उसको हम लोग सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं वो लैटिस क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, एंड इट गेट सेपरेट आउट इन Na plus and Cl minus. एंड यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, एंड वो कितना है? 790 किलो जूल पर मोल. मीन्स ये जो है दैट इज लैटिस एंथैल्पी.
enthalpy required to break its lattice is lattice enthalpy, and for NaCl it is 790 kilojoule per mole. So what is lattice energy? Energy required to break lattice, or we can also say इंट्रा बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है, दैट इज लैटिस एनर्जी. ओके, सो सबसे पहले जैसे ही सल्यूट वाटर के अंदर जाता है उसके इंट्रा बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं या फिर लैटिस ब्रेक होता है, एंड इट गेट्स कन्वर्ट टू आयंस. अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरैक्शन होगा. नाउ ions will get surround with water molecules is known as hydration, and इसी को बोलते हैं solute solvent interaction. Now Na plus will get surround with water molecule, Cl minus will also get surround with water molecule, and इसको बोलते हैं solute solvent interaction, and it is also known as हाइड्रेशन. एंड हम लोग को पता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाइड्रेशन क्या होता है, एंड जब भी हाइड्रेशन होता है एनर्जी भी क्या होता है? रिलीज होता है, एंड वो रिलीज एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. सो नाउ हियर Na प्लस विल गेट सराउंड विथ वाटर मॉलिक्यूल, and Cl minus will also get surround with water molecule, and इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन प्रोसेस, एंड हाइड्रेशन प्रोसेस के टाइम पे एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है. जब भी हाइड्रेशन होगा एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. ओके, तो इधर जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज 1 मोल ऑफ NaCl का हाइड्रेशन एनर्जी जो है दैट इज -786 किलो जूल पर मोल. सो सल्यूशन जब भी बना तभी उसको 2 स्टेप से होके जाना पड़ा, दैट इज सल्यूट इंटरेक्शन यानी लैटिस एंथैल्पी, and solute solvent interaction, that is hydration energy. So solution का जो enthalpy है it is a sum of lattice energy and hydration energy. So lattice energy कितना लगा? 1 mole of NaCl के लिए that is plus 790, and hydration energy कितना लगा? minus 786. So दोनों को add करो, you will get 4 kilojoule per मोल. सो 1 मोल ऑफ NaCl को वाटर में डिसॉल्व होने के लिए, सोल्यूशन में जाने के लिए कितना एंथैल्पी लगता है? 4 किलो जूल पर मोल. एंड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज अ सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी. ओके, नाउ लास्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. नाउ डाइल्यूट करना है सोल्यूशन को, सो विल टेक HCl सोल्यूशन लिया, उसके अंदर हम लोग ने और 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl इन सोल्यूशन लिया है, एंड नाउ वी आर एडिंग मोर 50 वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ये HCl क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो एंथैल्पी रिलीज होगा दैट इज -73.26 kilojoule, and this is enthalpy of dilution. So enthalpy of dilution is defined as enthalpy change that occurs when a solution of one concentration is diluted to another concentration.
is known as enthalpy of dilution. Okay, so with this, phase transition, physical transformation, enthalpy of physical transformation is over. Thermochemistry and physical transformation is related to each other. So let's start with thermochemistry. So what is thermochemistry? Study of enthalpy change during a chemical reaction is thermochemistry. Thermo यानी heat, enthalpy, chemistry यानी reaction. So enthalpy change during a chemical reaction is known as thermochemistry. So first type of enthalpy change is enthalpy of chemical reaction, and it is also known as heat of reaction, and it is denoted as delta H. So now what is heat of reaction or enthalpy of chemical reaction? Enthalpy change that accompanies a chemical reaction is enthalpy of reaction. So during chemical reaction, whatever amount of heat is released or absorbed at constant temperature and pressure is heat of reaction or enthalpy of chemical reaction. I write down the statement: the amount of heat released or absorbed in a chemical reaction at constant temperature and pressure is called heat of reaction, or you can also say enthalpy of chemical reaction. So consider one reaction: AA plus BB is giving you CC plus DD. So now here change in enthalpy will be what? Enthalpy, final enthalpy माइनस इनिशियल एंथैल्पी. अब फाइनल एंथैल्पी यानी क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. और इनिशियली क्या होता है? प्रेजेंट रिएक्टेंट होते हैं. सो इधर क्या आता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. ऑलवेज चेंज इज व्हाट? चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल यानी क्या होता है? प्रोडक्ट होता है. और इनिशियली क्या होता है? रिएक्टेंट्स होता है. सो प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी. सो नाउ हियर C, small a, small b, small d, small c is a stoichiometric coefficients. So C, small c into enthalpy of C plus D into enthalpy of D minus A into enthalpy of A plus B into enthalpy of B. This is enthalpy of reaction. So इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? And change in enthalpy is summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. So enthalpy of chemical reaction is a difference between the sum of enthalpies of product and that of
reactant with every substance in definite physical state and its amount represented by coefficient in balanced reaction is enthalpy of chemical reaction. Now suppose enthalpy of reaction is positive, तो उसका मतलब क्या है, हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है. इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड. इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, हीट जो है दैट इज रिलीज्ड. सो enthalpy of reaction can be positive or it can be negative depending on enthalpy absorbed or released. अगर पॉजिटिव एंथैल्पी आता है उसका मतलब क्या है, रिएक्शंस जो है वो एंडोथर्मिक है. रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है. एंड इफ एंथैल्पी इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है. हीट क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है बाहर. इसका मतलब ही हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है. नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इफ एंथैल्पी, summation of enthalpy of product is greater than summation of enthalpy of reactant. अगर ये ग्रेटर होता है तो डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. इसी का मतलब तुम्हारा रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है. सो जब भी प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा होता है रिएक्टेंट के एंथैल्पी से, सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. If enthalpy of product is less than enthalpy of reactant, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. इसी का मतलब है रिएक्शन तुम्हारा क्या है, एक्सोथर्मिक है. So these are the various way by which we can find whether reaction is endothermic or exothermic. Now let's take some example. If you have reaction N2 plus O2 giving you NO2, बैलेंस कर रही हूं मैं रिएक्शन को. डेल्टा एच जो है यहाँ पे दैट विल बी प्लस 66.4 किलो जूल. अब ये प्लस आया, इसका मतलब रिएक्शन जो है ये वाला दैट इज एंडोथर्मिक. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, KClO3 is getting, potassium chlorate is getting decomposed to KCl plus O2. बैलेंस कर रही हूं मैं. और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आता है दैट इज -78 किलो जूल. तो ये जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. क्यों, क्योंकि डेल्टा एच क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अनदर टाइप ऑफ एंथैल्पी, that is standard enthalpy of reaction. So अभी हम लोग ने सिर्फ enthalpy of reaction किया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, standard enthalpy of reaction. And standard things are always denoted by naught. So वो simple था, that was delta H, and now this is delta H naught. So standard enthalpy of reaction is the enthalpy change accompanying the reaction when all substance involved are in their standard state. जब भी रिएक्शन के अंदर सब जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, जब वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में रहेंगे तो उधर जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. सो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट? सो द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द फॉर्म इन विच दे आर मोस्ट स्टेबल. एंड वो स्टेबल कभी रहते हैं व्हेन
pressure is 1 atmosphere and room temperature पे that is 25 degree Celsius. So what are the standard conditions at which substances are in their stable state? That is 1 atmosphere pressure and 25 degree Celsius. So I repeat, when in a reaction, reactant and product will be in their standard state, तो वहां पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. एंड स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ही है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जब भी तुम्हारा सब्सटेंस जो है वो अपने स्टेबल फॉर्म में होता है. दे आर इन देयर स्टेबल फॉर्म. एंड वो कौन से कंडीशंस पे होता है? एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो आई राइट डाउन द डेफिनेशंस. So standard enthalpy of reaction is enthalpy change accompanying the reaction when all substances are in their standard state. Now standard state का मतलब क्या होता है? What is standard state? When they are in their stablest form. तो यहाँ पे मैंने कुछ examples दिए हुए हैं. You can see standard state of elements. जैसे हाइड्रोजन जो है वो नेचुरली H2 के फॉर्म में मिलता है तो वो उसका स्टैंडर्ड स्टेट है. मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है. कार्बन जो है वो ग्रेफाइट फॉर्म में मिलता है. ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन इज द स्टेबलेस्ट फॉर्म. ओके, सो दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन. एंड दिस all is obtained when your pressure is 1 atmosphere and temperature is 25 degrees Celsius. So this is the standard condition. Now standard state of some compounds, जैसे इथेनॉल है. इथेनॉल कैसा है? लिक्विड स्टेट में मिलता है. वाटर कैसा है? लिक्विड स्टेट में मिलता है. कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जो है वो कैसे मिलता है? सॉलिड स्टेट में मिलता है. CO2 जो है वो कैसे मिलता है? गैस स्टेट में. सो दिस आर दी नेचुरल, दिस आर दी स्टैंडर्ड स्टेट. मीन्स बाय नेचर उन लोग यही फॉर्म में ऑब्टेन्ड होते हैं. O2 जो है वो गैस फॉर्म में मिलता है. सो दिस ऑल आर व्हाट देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड दिस स्टेट्स आर मेजर्ड व्हेन प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. Okay, now I'll give you one example. Methane, standard form of methane is gas plus oxygen. Standard state of oxygen is gas. CO2, that is in gas state and water is in liquid state. ये सब उनके standard states है. बैलेंस करते हैं रिएक्शन को. सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर कंबर्शन हो रहा है, यू कैन से. एंड यहाँ पे अपने को CO2 एंड वाटर ऑब्टेन्ड हो रहा है. सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आएगा रिएक्शन के टाइम पे, सिंस ऑल आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, यहाँ पे जो एंथैल्पी आएगा दैट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी. एंड दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी विल बी इक्वल टू -890 kilojoule per mole. Okay. Now let's study standard enthalpy of formation, or you can also say it standard enthalpy is nothing but heat of formation. And it is denoted as delta FH naught. Standard जहाँ पे भी आएगा we have to bring naught there. Okay, so let's see what is formation. Formation reactions. So I'll give you one example. So for example, we'll take formation of 1 mole of water, H2O. सो वाटर जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में कैसे मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है.
सो इसका फॉर्मेशन 1 मोल, तुम्हारा प्रोडक्ट ऑलरेडी तुम्हें पता है, तुम्हें 1 मोल वाटर बनाना है, वो भी लिक्विड स्टेट में. सो नाउ इन वाटर व्हाट इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, एंड हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है दैट इज H2, एंड इन गैस फॉर्म. ओ का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, ओ नेचर में कैसे मिलता है, O2 के फॉर्म में मिलता है, एंड इट इज ऑल्सो इन गैस स्टेट. नाउ अपने को बैलेंस करना है, ये 1 ही रहना चाहिए यहाँ पे. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाफ पुट करेंगे. ओके, एंड यहाँ पे जो तुम्हारा वाटर फॉर्म होने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कितना रहेगा, -286 किलो जूल पर मोल. सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स 286 एनर्जी एक वाटर मॉलिक्यूल बनने पे रिलीज होता है. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स चेक आउट द रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन. मीथेन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, गैस स्टेट है. सो प्रोडक्ट अपने को ऑलरेडी पता है, वी हैव मीथेन एंड दैट इज ऑल्सो इन गैस स्टेट. नाउ मीथेन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कार्बन. तो हम लोग यहाँ पे आंख बंद करके कार्बन लिखेंगे. अब कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, ग्रेफाइट. सो सी ग्रेफाइट लिखेंगे हम लोग, प्लस इसके अंदर और क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो हम लोग क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, एंड H2 का स्टेट क्या होता है, गैस स्टेट होता है. अभी इसको हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है. सो विल डू इट 2. और यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा इसका, वो कितना रहेगा, इतना -74.8 किलो जूल पर मोल. मीन्स एक मीथेन फॉर्म होने पे -74.8 किलो जूल एंथैल्पी क्या होता है, रिलीज्ड होता है. सो नाउ लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेशन. So, definition is enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of the pure compound in its standard state is formed from its element also in their standard states. So, 1 मोल of compound बनने के लिए, एंड वो जो 1 मोल है इट शुड बी इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, वो बनने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आता है रिएक्शन में उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. नाउ यू हैव टू नोट वन थिंग, एंड दैट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लाइक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, standard enthalpy of formation of carbon, that is equal to standard enthalpy of formation of hydrogen, that is equal to standard enthalpy of formation of oxygen. और ये सब एंथैल्पीज आर इक्वल टू 0, बिकॉज ये सब एलिमेंट्स जो है वो यही फॉर्म में मिलते हैं इन नेचर. उनको फॉर्म होने के लिए एज सच कुछ एक्स्ट्रा एंथैल्पी नहीं लगता है, इसीलिए इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0. नाउ सपोज यू हैव वन रिएक्शन AA plus BB is giving you CC plus DD. So enthalpy of reaction, standard enthalpy of reaction is equal to C into enthalpy of formation of C plus D into enthalpy of formation of D. एंड ये सब एंथैल्पीज कैसी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. माइनस A इंटू एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस B इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B. So standard enthalpy of reaction is equal to summation of enthalpy of standard enthalpy of formation of product minus summation of standard enthalpy of formation of reactant. Okay.
So standard enthalpy of formation of compound is equal to standard enthalpy. So इससे अपने को क्या पता चलता है कि standard enthalpy of formation of compound is equal to standard enthalpy of reaction. So these two things you have to keep in your mind. This is first thing and this is second thing. Okay. Now, और ये सब चीजें तुम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी when we'll start with sum. Now, last enthalpy is standard enthalpy of combustion. So that is delta CH naught. So now let us take one reaction. We are taking one compound and उसका हम लोग combustion करते हैं. We have taken C2H2 plus O2 is giving you CO2 plus H2O. कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबर्शन पे अपने को CO2 and H2O ही मिलता है. This you people already know. इसका भी हम लोग बैलेंस करेंगे. यहाँ पे 1 मोल ही होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे हम लोग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का कंबर्शन करते हैं. दैट इज द स्टैंडर्ड थिंग. सो यू हैव टू डू बैलेंसिंग अकॉर्डिंग टू इट. सो ये 1 ही रहेगा यहाँ पे. सो 2 C है इसीलिए यहाँ पे 2 आएगा. हाइड्रोजन्स कितने हैं? 2 है which is already balanced. Now check out the oxygen. So this is 4 and 1 5. So this will be 5/2. Okay. ये 2C2H2 plus 5O2 is giving you 4CO2 plus 2H2O balancing नहीं करना है. You will get wrong answer. So यहाँ पे जो तुम्हारा combustion enthalpy रहेगा that will be ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? कंबर्शन का है. सो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा ड्यूरिंग कंबर्शन इज व्हाट? कंबर्शन एंथैल्पी. स्टैंडर्ड कंबर्शन एंथैल्पी एंड दैट इज इक्वल टू -300 किलो जूल. सो कंबर्शन पे ऑलवेज हीट क्या होता है? रिलीज होता है. सो कंबर्शन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव. यू कैन फील बर्निंग ऑफ वुड इज अ कंबर्शन ऑफ दैट वुड. और अपने को क्या आता है? हीट आता है ना उससे. जब भी वुड बर्न होता है वी कैन फील हीट. सो वाई वी कैन फील हीट? बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड आउट ड्यूरिंग दैट combustion. So every combustion reaction will have negative enthalpy. Now let us take one more example. अभी suppose हम लोग यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का that is in standard state gas state plus O2 which is in gas state, standard state है इनका, और इसका combustion अपने को CO2 दे रहा है which is also in gas state. Now इसको बैलेंस करेंगे. इसको 1 ही रखना पड़ेगा अपने को. This will be compulsory. नाउ C तो बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है. सो यहाँ पे हम लोग को हाफ कर देते हैं. सो नाउ इट इज बैलेंस्ड. नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ड्यूरिंग दिस कंबर्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ CO, हीट क्या होता है? रिलीज्ड होता है. एंड दैट हीट रिलीज्ड इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन एंड दैट इज इक्वल टू -283 किलो जूल पर मोल. ओके. So this is enthalpy of combustion. Now also यहाँ पे मैंने first reaction में phases लिखना मैं भूल गई हूँ, but you have to note down कि phases लिखना यहाँ पे thermodynamics में बहुत ज्यादा important है. You should never miss out the writing down the phases. अभी कैसा होता है, बहुत बार water का phases हम लोग confuse होते हैं लिखना कि लाइक क्या रहेगा. सो जब भी रूम टेम्परेचर दिया रहेगा तो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है. एंड अगर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस वगैरह बोलते हैं क्वेश्चन में तो वाटर विल बी इन गैस फेज. सो बाय चेकिंग आउट द टेम्परेचर यू शुड ऑलवेज राइट फेजेस ऑफ वाटर. क्योंकि अगर हम लोग फेज रॉन्ग करते हैं तो काफी बार अपने को न्यूमेरिकल्स में आंसर जो है वो रॉन्ग आ जाता है. सो नाउ लेट्स चेक आउट
the definition of standard enthalpy of combustion. The standard enthalpy of combustion of a substance is the standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of the substance in the standard state reacts completely with oxygen or is completely burned. तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में completely बर्न करते हैं एंड जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. सो नाउ we'll start with some numericals on this topic. So see, here is first numerical. Calculate the heat of formation of 0.25 moles of water. Given that H2 gas plus half O2 gas is giving you H2O liquid. And standard enthalpy of reaction is minus 300 kilojoule. Okay. So now consider this reaction. Now in this reaction there is formation of 1 mole of water. कितना मोल वाटर फॉर्म हो रहा है? 1 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है. So for formation of 1 mole of water, energy, enthalpy, heat required is how much? कितना हीट है? minus 300 kilojoule. So 0.25 मोल्स के लिए कितना लगेगा? So cross multiply 300 into 0.25 minus 300 है. So it will be minus 75 kilojoule. Okay. Now see here, next question. Calculate heat of formation of PCl5 solid from the given data. So first reaction दिया है 2 phosphorus solid plus 3Cl2 gas is giving you 2 PCl3 liquid. And delta H is minus 66.12 kilojoule. Next reaction is PCl3 liquid plus Cl2 gas is giving you PCl5 solid. Delta H is minus 137.24 kilojoule. Now calculate क्या करने बोला है? PCl5 heat of formation of PCl5 solid. So we'll write down formation reaction of PCl5 solid. So product तो अपने को already पता है. It is what? PCl5 and it is in solid state. Now PCl5 is consisting of phosphorus and chlorine. So phosphorus तो आएगा ही and उसके साथ में chlorine भी आएगा. एंड क्लोरीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? Cl2. अभी इसको अपने को बैलेंस करना है, बट बैलेंस करने के टाइम पे याद रखने का कि यहाँ पे 1 मोल ही PCl5 का बनना चाहिए. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू बैलेंस इट. तो उसके लिए फॉस्फोरस तो बैलेंस है. ये फॉस्फोरस का स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड होता है एंड क्लोरीन का गैस. एंड ये PCl5 का स्टैंडर्ड स्टेट इज सॉलिड स्टेट. नाउ बैलेंस करना है क्लोरीन को. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 5/2 कर देंगे. एंड व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट इज फॉर्मेशन एंथैल्पी. अभी you have to arrange these two reactions in such a way that you should get this reaction. Okay, so let's start. तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन
अभी अपने को क्या चाहिए, फॉस्फोरस इन सॉलिड स्टेट, वो कहाँ पे है, फर्स्ट रिएक्शन में है. बट यू कैन सी हियर अपने को 1 फॉस्फोरस चाहिए, यहाँ पे क्या है 2 फॉस्फोरस है. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल डिवाइड रिएक्शन 1 by 2. 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिएक्शन मिलेगा, फॉस्फोरस सॉलिड प्लस 3/2 Cl2 गैस इज गिविंग यू PCl3 लिक्विड. तो अभी रिएक्शन में जो चेंज किया वही अपने को एंथैल्पी में भी सेम चेंज करना है. सो इट विल बी 66.12 डिवाइड बाय 2. सो ये कितना आ जाएगा, -33.04. ओके, 33.06 आएगा ना, 06 किलो जूल. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग अपने को क्या करना है, नाउ सी दिस रिएक्शन. इसमें कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है. PCl5 सॉलिड अपने को चाहिए, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है इन सेकेंड रिएक्शन, एंड वो भी 1 ही है, ये भी 1 है. सो देर इज नो नीड ऑफ डूइंग एनी चेंजेस. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये रिएक्शन वापस से यहाँ पे लिख देती हूँ. फॉस्फोरस सॉलिड प्लस 3/2 Cl2 गैस इज गिविंग यू PCl3 liquid. And what is delta H? -33.06 किलो जूल. सेकेंड रिएक्शन एज इट इज लिखेंगे हम लोग, PCl3 liquid plus Cl2 gas is giving you PCl5 solid. And delta H भी as it is ही आएगा. Since we are not making any change in reactions, we will not make any change in enthalpy also. अभी इसको हम लोग कंपेयर करते हैं. सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी विल बी गेटिंग इज फॉस्फोरस सॉलिड प्लस 3/2 प्लस 1 इज व्हाट 5/2 Cl2 गैस एंड इट इज गिविंग यू PCl5 सॉलिड. नाउ इधर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा. सो जस्ट ऐड करो इसको, कितना आता है आंसर चेक करो मेरे साथ में. सो कितना आता है एंथैल्पी, दैट इज -170.3 किलो जूल. ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड न्यूमेरिकल. एंथैल्पी of formation of CO, CO2, N2O, N2O4 and all are in gas state are 110, -393, 81 and 9.7 kilojoule per mole respectively. Find the value of heat of reaction and reaction is N2O4 gas plus 3CO gas is giving you N2O gas plus 3CO2 gas. So सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कितना दिया है, -110 किलो जूल per mole. Then enthalpy of formation of CO2 is -393 kilojoule per mole. Then enthalpy of formation of N2O is 81 kilojoule per mole, and enthalpy of formation of N2O4 is 9.7 kilojoule per mole. Find the value of heat of reaction, enthalpy of chemical reaction. For reaction दिया हुआ है, ये reaction के लिए अपने को calculate करना है. So enthalpy of reaction is what, summation of
एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस summation of enthalpy of reactant. So now here first check out whether this reaction is completely balanced or not. तो reaction तो balanced है. So let's start. So product में N2O and CO2 है. So 1 into enthalpy of formation of N2O plus 3 into enthalpy of formation of CO2. Okay. माइनस रिएक्टेंट में N2O4 and CO है. So 1 into formation enthalpy of N2O4 plus 3 into enthalpy of formation of क्या है CO. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. दैट इज 1 into 81 plus 3 into CO2 that is minus 393 minus 1 into 81 नहीं कितना है सॉरी 9.7 दिया है ना यहाँ पे. इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन. देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है CO का कितना है 3 into minus 110. So now this will be, इसको कैलकुलेट करो ये ब्रैकेट को कितना आता है आंसर. सो इट इज कमिंग minus 1098 माइनस ये ब्रैकेट का कैलकुलेशन करो. यू विल गेट इट अराउंड minus 320.3. नाउ calculate together, so answer will be minus 777.7 kilojoule per mole. Okay, let's do more numericals. Next numerical, read question carefully. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. How much heat is evolved when 12 grams of CO reacts with NO2 according to following reaction. 4CO plus 2 NO2 giving 4CO2 plus N2. Heat of reaction कितना दिया है minus 1198 kilojoule. Okay, so let's start. क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ है heat of reaction दिया हुआ है and we are supposed to calculate for 12 grams of CO. So now here in this question ये जो heat of reaction दिया हुआ है that is given for 4 moles of CO. कितने मोल्स के लिए दिया हुआ है 4 मोल्स के लिए दिया हुआ है and we are supposed to calculate it for 12 grams. Okay. सो नाउ कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे. सो क्वेश्चन से व्हाट वी हैव फाइंड आउट इज फॉर 4 मोल्स ऑफ CO हीट ऑफ रिएक्शन कितना है minus 1198 किलोजूल है. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट 12 ग्राम्स यानी कितना मोल्स ऑफ CO. ओके, सो CO का मोलार मास ऑफ CO इज 28. मोल्स कितना आएगा मोल्स ऑफ CO विल बी 12/28. सो कितना होता है चेकआउट करो 0.4285 मोल्स आता है. ओके, सो 4 मोल्स के लिए हीट कितना रिक्वायर्ड है minus 1198 किलोजूल. सो 0.4285 के लिए कितना हीट required है. So just calculate and let me know the answer. कितना आ रहा है आंसर. So it is coming around minus 128.3. इधर यूनिट क्या दिया है किलोजूल. So इधर क्या आएगा किलोजूल.
So let's see next question. So let's read out this question. Calculate standard enthalpy of formation of C2H6 from the following data. 2 C2H6 plus 7 O2 is giving you 4 CO2 plus 6 H2O. बेंजीन का कंबर्शन हो गया यहाँ पे और कंबर्शन एंथैल्पी है -3119 किलोजूल. Formation enthalpy of CO2 is -393.5 and formation enthalpy of water is -285.5 kilojoule per mole. And what we are supposed to calculate is formation enthalpy of benzene. So this we have done in theory. Heat of reaction is equal to heat of formation. So heat of reaction is what? Summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. This is given. Heat of reaction is given. अब products में क्या क्या है? CO2 and water. So it will be 4 into enthalpy of formation of CO2 plus 6 into enthalpy of formation of H2O minus 2 into enthalpy of formation of C2H6 plus 7 into enthalpy of formation of O2. Now वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. हीट ऑफ रिएक्शन इज -3119. 4 into heat of formation of CO2 will be -393.5 plus 6 into heat of formation of water is -285.8 minus, ये तो अपने को कैलकुलेट करना है, सो वी टेक इट x एंड इन थियरी वी हैव ऑलरेडी डन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 0 बिकॉज ऑक्सीजन फॉर्म नहीं होता है, इट इज O2 के फॉर्म में ही वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 0 बिकॉज ऑक्सीजन कोई केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता है. नेचुरली इट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ O2. सो नाउ कैलकुलेशंस करते हैं. 4 into 393.5 is how much? -1574 plus 6 into -285.8 is 1714.8. Okay, minus 2x. सो नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं. सो दिस विल बी -3288.8 minus 2x. अब ये इधर चला जाएगा. सो व्हाट विल गेट इज 169.8 दैट इज इक्वल टू 2x. सो x will be equal to -84.9 kilojoule per mole. So enthalpy of formation of C2H6 is -84.9 kilojoule per mole. Okay, let's do one last numerical on this topic. Calculate total heat required
to melt 180 grams of ice at 0 degree Celsius. Heat it to 100 degree Celsius and then vaporize it at that temperature. Heat of fusion of ice is 6.01 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. Vaporization enthalpy of water is 40.7 kilojoule per mole at 100 degree Celsius. Specific heat of water is 4.18 joule per gram Kelvin. So अभी हम लोग एक स्कीमेटिक बनाते हैं which will give us idea कि क्या बोला है. So क्या बोला है? Heat required to melt 180 grams of ice at 0 degree Celsius. Means water solid जो है that is getting melt to water liquid. And this ये जो है वो 0 degree Celsius पे है and this is also at 0 degree Celsius. Now फिर क्या बोला है? Heat it to 100 degree Celsius. मीन्स नाउ ये लिक्विड को अपने को क्या करना है? हीट करना है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस. एंड नाउ इसको हीट करना है टू मीन्स उसका वेपर बनने तक. एंड देन वेपराइज इट एट दैट टेम्परेचर ओनली. मीन्स ये भी तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा बट इट विल बी इन गैस फॉर्म. सो ये ऐसा क्वेश्चन में बोला है. मीन्स फर्स्ट देयर विल बी फ्यूजन एट 0 डिग्री सेल्सियस. देन जो भी लिक्विड फॉर्म हुआ है उसको हीट करना है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन 100 डिग्री सेल्सियस पे वापस से लिक्विड को वेपराइज कर देना है. ओके सो ये सब चीजें तुम्हें क्वेश्चन में ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है. अब अपने को सॉलिड से वेपर में जाने तक कितना हीट लगता है टोटल ये अपने को कैलकुलेट करना है. सो लेट्स कैलकुलेट सबसे पहले मोल्स ऑफ वाटर. सो मोल्स कितना आएगा? 180 अपॉन 18 दैट इज 10 मोल्स. 10 मोल्स ऑफ वाटर के लिए अपने को कैलकुलेशन करना है. सो पार्ट वाइज करते हैं. लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट दैट इज फ्यूजन. वाटर solid is getting convert to water liquid. This is also at 0 degree Celsius. This is also at 0 degree Celsius. And fusion enthalpy भी दिया हुआ है. मीन्स एक मोल के लिए कितना हीट लगता है? 6.01. तो 10 मोल्स के लिए कितना लगेगा? So for 1 mole heat required is 6.01. So for 10 moles it will be how much? So it will be 60.1 kilojoule. So this is your first heat. अब सेकेंड पार्ट लेते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है? H2O liquid is getting convert to H2O liquid only but at different temperature. This is at 0 degree Celsius. This is at 100 degree Celsius. So now here formula क्या आएगा? Heat required is equal to mass into specific heat into change in temperature. इसको बोलते हैं mCp delta T. H is equal to mCp delta T. So mass question में दिया हुआ है it is 180. Specific heat भी दिया हुआ है 4.18 and change will be how much? 100 ही आएगा ना. 100 minus 0 is 100. Now इसको कैलकुलेट करो तो आंसर आएगा 75240. अब यूनिट क्या रहेगा? स्पेसिफिक हीट इज गिवन इन जूल सो इट विल बी इन जूल. बट ये हम लोग ने किलो जूल में कैलकुलेट किया तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं. सो इट विल बी 75.24 किलो जूल. सो दिस इज योर सेकेंड. अब थर्ड पार्ट हैंडल करते हैं. थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है? वाटर लिक्विड is getting convert to water
गैस एंड टेम्परेचर भी क्या है, दोनों का सेम टेम्परेचर है. सो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपने को अवेलेबल है, इट इज गिवन हियर. सो फॉर 1 मोल ऑफ वाटर एंथैल्पी इज 40.7 किलोजूल. सो फॉर 10 मोल्स कितना आएगा? सो इट विल बी हाउ मच? 407 kilojoule. So this is your third. Now we'll add this 3 and तो अपने को क्या मिलेगा? Total heat मिलेगा. So total heat is equal to 60.1 plus 75.24 plus 407 kilojoule. So just add करो and check out करो आंसर कितना आ रहा है. So it will come around 542.34 kilojoules. Okay. So with this, I have covered numericals based on enthalpy. We'll do more numericals in live online lecture, and also we'll cover your doubts. So till then, take care. Bye bye.